PhD guide, and he has done MA in Marathi literature and political science and MA education. And Dr. Mahesh has also completed 3 minor research projects funded by SSA UT and State Women's Commission Maharashtra. And along with this research project, he has published 15 research papers, articles so far in various national and international journals. And he has also contributed 4 chapters in an edited book, 3 chapters to ODL study material of YCMOU. And Dr. Mahesh has worked as keynote speaker and resource person in various national and state level seminars, webinars, and various faculty development programs, and also participated in more than 20 international and national seminars in India as well as abroad. And this is a proud session that he has developed and deployed MOOC as OER on development of 21st century skills through education. Sir, I was part of that. That was really interesting project. And development of 21st century skills through education too. And under the UNESCO OE for BW Online Mentoring Program 2019 and 20. And along with this project, he has also developed a 4-credit 90 hours MOOC as OER on school leadership capacity building with the support of first Univoc OER Grant Program 2020, UNESCO, Univoc, Germany. And from 2021, he is working as a mentor for the OE for BW OER development project. And one more thing, that he has been invited by the UNESCO chair on open technology for OER and open education Slovenia, Europe, to share his OER development project results in the UNESCO OER design workshop 2019. And this year I am going there. Thank you, sir. And one more laurel to his cap, that Dr. Mahesh has been awarded as a state level Sri Dr. Mahatma Gandhi Chanabasa, sir, what is Patra Devaru Award for contribution in the field of education. Sir, आप इसके बारे में बताइएगा थोड़ा सा. At Bidar, Karnataka, and he has also received Best Research Paper Presentation Award in National Conference on Paradigm Shift in Indian Teacher Education Program, organized by PVDT College of Education for Women in 2017. Sir, and there is much more to say about you. We are feeling really lucky to have you with us today. Thank you so much, sir, for accepting our invitation. Thank you very much for such a kind introduction. बस जैसा आपने बताया वैसा कुछ भी नहीं है. हम सभी एक ही, जैसे आपने कहा कि हम जाकर आए, आप अभी जा रहे, तो वी आर इन अ सेम लाइन. तो कुछ ऐसे बड़ी बात नहीं है, ये तो हमारे प्रोफेशन के पार्ट से जो भी हमने काम किया है वो. आज जो टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, मुझे खुशी है क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए हम ये कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार हमें ऐसे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए तो हम काफी है, बाहर से किसी को क्या बुलाने की जरूरत है. वी आर इनफ फॉर देयर डेवलपमेंट, देयर शार्पनिंग देयर स्किल्स. तो उस कंपैरिजन में आपने स्टूडेंट्स के लिए इस तरह से सोचा, ये बहुत बड़ी बात है. इसके लिए मैं आपकी जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जनक रानी मैडम, और आप स्वयं पूनम बत्रा, नरेंद्र कुमार सर, ललित कुमार सर, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि हमारी पहली ड्यूटी हमारे छात्र है. तो हमारा मैक्सिमम, मैं कहता हूँ 95% टाइम, 95% एफर्ट शुड फॉर देम, तो उनके लिए होने चाहिए. और उसी के लिए आप सभी ने ये प्रोग्राम रखा, इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन. और आपने आपके छात्रों के साथ संवाद करने के लिए मुझे चुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके हम जो आज का हमारा टॉपिक है उसके ऊपर बात. स्क्रीन तो विजिबल है आप लोगों को, होप. जी सर, इट इज विजिबल.
जैसा कि मैडम ने बताया, आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ई पोर्टफोलियो। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूंगा, क्योंकि मेरे लिए भी वो कंफर्टेबल है और मुझे लगता है छात्र भी उसमें कंफर्टेबल होंगे। इज इट ओके मैडम? Yes, sir. Absolutely okay. तो ई पोर्टफोलियो की तरफ जाने के पहले मेरा छात्रों से एक सवाल है कि पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो के बारे में आपके मन में जो भी कल्पना है वो चार्ट का उपयोग करिए और उसके बारे में एक दो शब्दों में अपनी बात रखेंगे, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों का क्या परसेप्शन है अबाउट द पोर्टफोलियो। मैं ई पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल पोर्टफोलियो के बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आप क्या मानते हैं, पोर्टफोलियो क्या है इसके बारे में। व्हाट इज पोर्टफोलियो? आप पोर्टफोलियो क्या है इसके बारे में अपनी बात रख सकते हैं। एक दो शब्द में भी आपने बात रखी तो वो काफी है, बस हमें समझ में आए कि आप कहना क्या चाहते हैं। Portfolio is a bunch of securities. अच्छा, this is the different type of understanding about the portfolio. This type of portfolio is using in a stock market. Don't search on Google. आपको जो मालूम है वो लिखिए, आपको जो पता है वो लिखिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए। हाँ, पोर्टफोलियो मीन्स कि अगर हमने मान लो कहीं इंटरव्यू वगैरह के लिए कहीं अपनी खुद को प्रेजेंट करने के लिए जाना है, तो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसका कलेक्शन या उसका रिकॉर्ड जो हम उनके सामने पहले ही कलेक्ट करके रखते हैं प्रेजेंट करने के लिए। ओके, अच्छी बात है, आपने सही दिशा में बात कही है। ठीक है, थँक यू। अपन बीएड कोर्स मध्ये काय शिकलो ते केलं। हाँ, हमने जो बीएड में जो भी सीखा है, पढ़ा है, उसके बारे में जो रिपोर्ट, एक तरह का रिपोर्ट होता है कुछ स्टूडेंट्स का, ये कहना। हाँ, जो 2 साल में हमने काम किया उसी का विवेचन है, ऐसा और छात्र बता रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने कहा, जो हमने अर्न किया है, व्हाट आई हैव, इसको प्रेजेंट करने को पोर्टफोलियो कहते हैं। इट इज अ शोकेस। तो पोर्टफोलियो क्या है? एक तरह का शोकेस है जिसमें मैंने इस प्रोफेशनल जर्नी में, अगर हम किसी प्रोफेशन के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट प्रोफेशन, तो उस प्रोफेशन के लिए मेरे पास क्या क्या है, व्हाट आई हैव। जैसे हम अगर टीचिंग के प्रोफेशन के लिए जा रहे हैं, तो एज अ टीचर मेरे पास क्या चीजें हैं, टीचर के पास क्या चीजें होनी चाहिए। टीचर के पास स्किल्स होने चाहिए, कंटेंट नॉलेज होना चाहिए, उसके पास राइट एटीट्यूड होना चाहिए, है ना। तो इनमें से मेरे पास क्या क्या है, तो ये बताने की कोशिश, ये बताना मतलब पोर्टफोलियो है। ये हम इस तरह से बताते हैं कि इट इज नॉट अ रिपोर्ट। ये रिपोर्ट से थोड़ा अलग है। रिपोर्ट जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। इट इज वो ज्यादातर वर्णनात्मक और कह सकते हैं हम टेक्सचुअल बहुत बार होता है। बट जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो यहाँ पोर्टफोलियो में कुछ शो करने वाली चीजें होती है, दिखाने वाली चीजें होती है। तो पोर्टफोलियो ये जो है मार्केट के लिए उपयोग में लाया जाता है। जब हम किसी चीज को मार्केटिंग करते हैं ना, मार्केट में जाते हैं, तो हम मान लीजिए कि टीचर, हम खुद को कल जब बीएड हो जाएगा तो हम मार्केट में अपने आप को, आई एम बेटर फॉर, आपके लिए मैं बेहतर ऑप्शन हूँ, ये बताने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए हम जो बनाते हैं उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। मतलब शोकेसिंग है एक तरह से। तो यहाँ विजुअलाइज चीजें की जाती है, इंपेरियलाइज की जाती है, एविडेंसेस को अलाइन किया जाता है, रैशनली वो दिखाने की कोशिश की जाती है कि इस तरह से जो फोकस चीजें हैं फॉर दैट प्रोफेशन वो मेरे पास है। तो जनरली ये जो पोर्टफोलियो की कॉन्सेप्ट है इस तरह। पोर्टफोलियो एक तो शोकेस करने के लिए है, और इसके साथ साथ इसका जो दूसरा मकसद है वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए।
तो ये असेसमेंट का भी एक हिस्सा है। मतलब कंटिन्यूअस पोर्टफोलियो प्रिपरेशन में जब आप रहते हो तो खुद ही अपने आप को हम कहाँ तक पहुंचे हैं इसका एहसास आपको होता है। और अगर आपका पोर्टफोलियो कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व किया जा रहा है आपके मेंटोर के द्वारा, आपके टीचर के द्वारा, तो आपके टीचर जो है वो आपको इम्प्रूव करने के लिए उसमें मदद भी करेंगे। अगर केवल एंड में एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द लर्निंग अगर पोर्टफोलियो बना के लिया जा रहा है तो इन दैट केस इट इज अ टूल और अ वे ऑफ समेटिव असेसमेंट। तो हम उस असेसमेंट के ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे, पोर्टफोलियो और खास करके हम ई पोर्टफोलियो में ज्यादा फोकस करने वाले हैं। तो आज जो हम एक घंटा या सवा घंटा जो भी हमें टाइम है हमारे पास, उसमें हम देखने वाले बहुत कुछ ज्यादा चीजें नहीं है। व्हाट इज एन ई पोर्टफोलियो, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि पोर्टफोलियो क्या है, वो भी हमने बहुत मोटा मोटी उसकी बात की। और अभी हम इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे व्हाट इज एन ई पोर्टफोलियो। ई पोर्टफोलियो क्या है, द नीड फॉर ई पोर्टफोलियो, इसकी जरूरत क्या है, क्यों भाई इसकी क्या जरूरत है। देन वीविंग अवेलेबल ई पोर्टफोलियो, और हम यहाँ देखेंगे कि कुछ जो ई पोर्टफोलियो अवेलेबल है वो कुछ सैंपल हम देखेंगे। एंड लास्टली प्रिपरेशन ऑफ ई पोर्टफोलियो, तो हम थोड़ा सा सैंपल या डेमोन्स्ट्रेशन भी उसका देखेंगे कि अपना ई पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। वैसे तो ई पोर्टफोलियो प्रिपरेशन के लिए आपको होल डे वर्कशॉप की जरूरत है। मतलब अगर आप लैब में लेकर जाएंगे और आपको कराएंगे तो आप बेहतर कर सकते हो, लेकिन मुझे गारंटी है कि आपके जो टीचर मेंटोर्स है उसके बाद में आपको जो एक्टिविटी टाइम रहेगा, मैं गाइडलाइन यहाँ पर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड दूंगा, वो आपसे वो जरूर करवाएंगे। What is an e-portfolio? That is जैसे हमारा एजेंडा है उसके अकॉर्डिंग, an e-portfolio, electronic portfolio, is an electronic collection of evidence that show your learning journey over time. It's the evidence is an important word. तो जैसे मैंने अभी कहा कि ये रिपोर्ट कम एविडेंस ज्यादा है, ये रिपोर्ट कम प्रदर्शन ज्यादा है। हियर इज अ प्रदर्शन, हम कहते हैं ना, जो मतलब हम प्रदर्शन, अपने गुणों का प्रदर्शन करना इस तरह से, और विद एविडेंस उसको दिखाना, इसकी कोशिश इसमें होती है पोर्टफोलियो में। और सेम थिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो में भी होती है। केवल अंतर ये है कि यहाँ जो एविडेंसेस है ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, मतलब ई फॉर्म में होते हैं। अगर हम हार्ड बाउंड टाइप ऑफ पोर्टफोलियो की बात करें तो एक बड़ी फाइल बन जाती है, भारी 1-1.5-2 किलो की, क्योंकि वो सारा अगर हम 2 साल की जर्नी, वो 2 साल के जर्नल, 2 साल की एक्टिविटीज, असाइनमेंट सब इकट्ठा करेंगे तो बहुत बड़ा हेवी वेट इस तरह का आपका पोर्टफोलियो बन जाता है। बट जब हम ई पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम उन्हीं चीजों को प्रेजेंट करते हैं। जब एविडेंस की बात करते हैं तो व्हाट टाइप ऑफ एविडेंस, इसमें किस तरह के एविडेंस आते हैं। एविडेंस में इंक्लूड राइटिंग सैंपल्स। अभी आप बीएड छात्रों के पास किस तरह के राइटिंग्स आप करते हो, कोई बताएगा? क्या लिखते हो आप जब बीएड में अलग अलग एक्टिविटीज करते हो, तो क्या होता है आपके पास जो कि राइटिंग सैंपल के रूप में? चार्ट का यूज करिए या अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, इतना हमारे मतलब मीटिंग में इतना क्राउड नहीं है कि लोड आ जाए इसके। आपको क्या लग रहा है राइटिंग सैंपल्स मींस व्हाट विल बी द राइटिंग सैंपल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर प्रोग्राम? हाँ, रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन फ्रॉम वेयर, कहाँ के रिफ्लेक्शन, कैसे रिफ्लेक्शन? नहीं, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे जो अभी बोल रहे हैं। हम लोग क्या क्या लिखते हैं बीएड में, थोड़ा याद करिए। केलेल्या कार्याचा रिपोर्ट। ओके, तब रिपोर्ट्स, हमने कुछ काम किए हैं, एक्टिविटीज की है तो उसके रिपोर्ट्स होंगे, राइटिंग सैंपल्स। योर लेसन प्लान इटसेल्फ अ राइटिंग सैंपल ना, आपने वो लिखे हुए हैं लेसन प्लान्स। कुछ असाइनमेंट्स है जो आपने लिखे हुए हैं, आपने कुछ कॉम्पिटिशन्स में ऐसे राइटिंग किया होगा, आपने अलग अलग एक्टिविटीज में अलग अलग तरह की राइटिंग ओरिएंटेड चीजें की है ना। बीएड में ऐसे कई सारी चीजें होती है जहां हम रिटर्न फॉर्म में
जो कंप्लीशन करते हैं, जैसे रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन की एक्टिविटी है, तो उसमें हम नोट लिखते हैं, उसके ऊपर जो रीड किया उसका समरी लिखते हैं। तो इस तरह से मतलब सारा बहुत सारी चीजें जो है वो हम राइटिंग फॉर्म में करते हैं। तो फर्स्ट एविडेंस किस तरह का हो सकता है, राइटिंग सैंपल्स, जो हमारे बेस्ट ऑफ राइटर्स है, मतलब बेस्ट ऑफ लेसन प्लान हो सकता है, इट मे बी अ बेस्ट वर्कशीट हो सकती है, इट मे बी अ बेस्ट एसे हो सकता है। तो इस तरह के जो आपके बेस्ट रिटर्न मटेरियल है, जो भी वो चाहे रिटर्न फॉर्म, मतलब आपका रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो सकता है, या फिर आपने कहीं विजिट किया तो विजिट रिपोर्ट हो सकता है, व्हाटएवर, बट आपको क्या करने, उसके राइटिंग सैंपल्स देने। ऑल राइटिंग्स नहीं, पोर्टफोलियो में ऑल नहीं इंक्लूड होता है। तो जैसे हम किसी को अगर दिखा रहे हैं अपना कोई प्रदर्शन है, तो बेस्ट ऑफ बेस्ट दिखाते हैं ना, हम सब कुछ तो नहीं दिखाते। जब मेहमान आते हैं, हम हमारे घर में आने वाले होते हैं, तो हम हमारी जो बेस्ट ऑफ बेस्ट थिंग्स होती है उनको हाईलाइट करते हैं। उसी तरह से अगर हम मार्केट में जा रहे हैं कि मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मेरे पास ये स्किल है, मेरे पास ये कॉम्पिटेंसी, ऐसा हम जब कहते हैं, तो जिन चीजों से, जिन राइटिंग सैंपल से ये प्रूव हो कि आप में ये स्किल है, फॉर एग्जांपल आप ऐसा क्लेम करें कि आई विल मेक अ गुड इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, अगर आप ऐसा लिख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में कि मैं जो हूँ वो बेस्ट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन बना सकती हूँ, इन दैट केस यू हैव टू गिव अ रिटन सैंपल ऑफ द योर बेस्ट इंस्ट्रक्शन डिजाइन जो आपने बीएड करते वक्त यूज किए। तो इस तरह से आपने जो क्लेम आप करते हो उसको जस्टिफाई करने के लिए सैंपल आपको एज ए एविडेंस वहां देनी। अगेन सेकंड टाइप ऑफ एविडेंस क्या होता है, फोटोज, जो अलग, क्योंकि आज तो बहुत आसान है फोटो निकालना, मतलब 10 साल पहले की बात करें तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग, मतलब ऐसे फोटो निकालना इतना आसान नहीं था। तो आज आप हर इवेंट की, हर चीज की फोटो निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब किसी का भी फोटो निकालना है। तो वी हैव टू फॉलो द सम मैनर्स ऑफ रिकॉर्डिंग्स एंड क्लिकिंग फोटोज। अगर किन्हीं लोगों की फोटो ले रहे हैं, किसी की रिकॉर्ड करे, किसी का कोई इवेंट या कोई चीज हम रिकॉर्ड करें, दैट टाइम वी हैव टू फॉलो द मैनर्स लाइक टेक अ प्रायर परमिशन, उनसे पूछे बिना ये नहीं करना। अदरवाइज हम लोगों को ये, मतलब ये भी सिखाने की भारत में तो जरूरत है ही, कोई फंक्शन चल रहा है तो लोग कैमरे लेकर आ जाते हैं, फटाफट क्लिक करने लगते हैं। दिस इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि आपने जिनका फोटो खींचना है उनसे पूछना है। इफ दे अलाउ देन यू कैन क्लिक द फोटो। अगर कोई सिचुएशन है, इट इज इन अ पब्लिक सिचुएशन, इन दैट केस यू कैन टेक फोटो पिक्चर्स, बट बहुत जगहों पर हमें ये कॉन्शियस रहना है कि फोटो निकालते समय, वॉइस रिकॉर्डिंग करते समय या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय हमें किसी की प्राइवेसी, परमिशन, इन इथिकल चीजों का ध्यान रखना है। तो ये जो फोटोज है, तो आपने कहीं विजिट की तो वहां के फोटो हो सकते हैं, आप अपने मेंटोर के साथ गाइडेंस ले रहे हैं उस वक्त का रिकॉर्डिंग हो सकता है, बट इन दैट केस यू हैव टू टेक प्रायर परमिशन ऑफ योर मेंटोर, उसको पूछना आपको पड़ेगा कि कैन आई रिकॉर्ड द सेशन। तो इस तरह से कुछ रिकॉर्डिंग्स हो सकते हैं, फोटोज हो सकते हैं, तो उसको आप एज एविडेंस यूज कर सकते हैं। वीडियोज, जैसे अभी मैंने इनके साथ जोड़कर ही बात की, रिसर्च प्रोजेक्ट जो आपने कंप्लीट किया है वो आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं, बिकॉज रिसर्च प्रोजेक्ट इटसेल्फ अ एम्पिरिकल रिपोर्ट, it is based on the evidence, so you can use the research project also as a evidence of your work. Observations by mentors, आपके mentors ने जो आपके लेसन ऑब्जर्वेशन किए हैं, आपके विजिट के ड्यूरिंग आपको ऑब्जर्व किया है, कोई फीडबैक रिटन फॉर्म में दिया है, आपके सबमिशंस के संदर्भ में उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस है, तो आप उन ऑब्जर्वेशन को भी एज अ एविडेंस, एज अ एक्नॉलेजमेंट आप उसको यूज कर सकते हैं। एंड और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, एंड उसके साथ आपने जो उसको हर एक एक्टिविटी में जोड़ के जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग किया था उसको भी हम एज अ एविडेंस यूज कर सकते हैं। सेकंड, द की एस्पेक्ट ऑफ एन ई पोर्टफोलियो इज योर रिफ्लेक्शन। तो ये बात बहुत जरूरी है कि पोर्टफोलियो में केवल हमारी चीजें दिखानी नहीं है, हमारी अचीवमेंट्स दिखानी नहीं है, स्किल्स दिखानी नहीं है, हमने किया हुआ काम दिखाना है, इतना मर्यादित नहीं है। उसके साथ साथ वो मेरे
पर्सनल डेवलपमेंट की प्रोसेस को भी इलैबोरेट करना है, वो प्रोसेस भी पता चलनी चाहिए। तो उसके लिए रिफ्लेक्शन जो है वो जरूरी हो जाता है, और रिफ्लेक्शन करने से ही पता चलता है कि आप में उसको अप्लाई लेवल पर लाने की कितनी ताकत। तो आपका रिफ्लेक्शन बता सकता है कि आपने जो काम किया है वो काम आगे फॉर माय कंपनी, फॉर माय स्कूल, आप उसको वर्क में ला सकते हो, रियलिटी में ला सकते हो, अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, ये पता चलता है आपके रिफ्लेक्शन से। तो रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो key factor of the portfolio on the evidences such as why it was chosen and what you learn from the process of developing your portfolio। तो ये सारी चीजें पोर्टफोलियो के रिफ्लेक्शन में, और जो एक्टिविटी आपने जो एक फोटो आपने अगर चूज किया है तो यू हैव टू राइट अ कैप्शन एज अ रिफ्लेक्शन, क्यों और इसने आपको कैसे कंट्रीब्यूट किया है, तो ये आपको वहां लिखना जरूरी है। तो इस तरह से हर एक एक्टिविटी के अंत में और at the end of the portfolio आप पोर्टफोलियो प्रिपरेशन प्रोसेस के बारे में अपना रिफ्लेक्शन लिख सकते हैं। In short, electronic portfolios are selective and mindful collection of work assembled to demonstrate personal achievement and abilities and are made available on the world wide web. This is the difference between hard type of portfolio and ई पोर्टफोलियो जो है आप वो दुनिया भर कहीं भी, यहाँ बैठकर आप चाहे अफ्रीकन कंट्रीज में किसी को आप रिक्रूट करना है, या फिर अरेबियन कंट्रीज में आपको रिक्रूट करना है, यूरोपियन कंट्रीज में आपको रिक्रूट करना है, दे कैन व्यू योर पोर्टफोलियो। आपको भेजने की जरूरत नहीं है, आप खाली लिंक उनको शेयर करेंगे तो उनको आपका पोर्टफोलियो वो देख सकते हैं आपको। तो वर्ल्ड वाइड एक्सेस जिसे हम कहते हैं कि आपके बारे में कितने लोग जानेंगे, आप जिस स्कूल में जाते हैं वो स्कूल आजू बाजू वाले 4 स्कूल आपके और दोस्त आपके इतने ही लोग जानते हैं। तो आप क्या हो ये अगर दुनिया भर को पता चले इंस्टेड ऑफ योर लिमिटेड एरिया, तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी है, जो करियर की अपॉर्चुनिटी है, वो भी उतनी ही बढ़ जाती है जितना आपको आपके पोर्टफोलियो का एक्सपोजर मिलता है। और ई पोर्टफोलियो में इसके लिए मतलब वहां इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि कौन इसको एक्सेस करे। तो अभी सवाल ये आता है कि इसकी जरूरत क्या है। और अगर आप बात करेंगे 90s के पहले की या मेरे जन्म के पहले की, तो आप सुनते होंगे अपने बड़ों से कि हमें तो घर, हम डिग्री होने के बाद तुरंत कॉल आ जाता था नौकरी के लिए, आ जाइए आप ज्वाइन हो जाए। तो वो चीज आज नहीं है। आज जो है वो कंपटीशन है, आज जॉब अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है और एस्पिरेंट जो है उनकी संख्या ज्यादा है। तो उस केस में जो एम्प्लॉयर्स है, जो आपको जॉब देने वाले हैं, उनको भी बेहतर कैंडिडेट की चॉइस है। तो वो इतने सारे लोगों में से आप ही को चुने, इसके लिए आपको अपने आप को बेहतर तरीके से दिखाना जरूरी है, आपकी एबिलिटी को आपको शोकेस करना जरूरी है। उसी संदर्भ में नीड ई पोर्टफोलियो की नीड्स भी हम देख सकते हैं। प्रेजेंट मार्केटिंग स्किल एंड एबिलिटीज, खास करके ऐसे स्किल्स एंड एबिलिटीज आपको दिखानी है जो कि आप उस कंपनी, उस स्कूल, उस लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, उस मतलब बायजू जैसे अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो उनको आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपके पास उनके लिए सुटेबल एबिलिटीज एंड स्किल्स है। तो ये जो मार्केटिंग स्किल एंड एबिलिटीज है वो करंट एंड पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स, तो इसके अकॉर्डिंग आपको वो प्रेजेंट करने के लिए पोर्टफोलियो की जरूरत है। प्रोवाइड इजी एक्सेस टू अ कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस एंड टेक्निकल स्किल, उसका जो परफॉर्मेंस है, जो भी कैंडिडेट मींस आप जो जाओगे मार्केट में या फिर स्कूल में, तो आपका जो परफॉर्मेंस एंड टेक्निकल स्किल्स है उसको वो आसानी से समझ सके, उनको कोई डाउट ना रहे आप क्या हो इसके बारे में, उनको बहुत सटीक और कॉन्क्रीट तरह की आइडिया उनको मिले। Enable employers to access an electronic portfolio from anywhere in the world. It is a unique feature of the e-portfolio कि आपके जो एम्प्लॉयर्स है वो कहीं से भी आपके पोर्टफोलियो को एक्सेस कर सके। इसके लिए हम अपने पोर्टफोलियो को ई फॉर्म में बनाते हैं ताकि आपके एम्प्लॉयर
वर्ल्ड वाइड कहीं से भी उसको आसानी से एक्सेस कर सके। अगर हार्ड कॉपी में हमारा रहेगा तो ये हम भेजना पॉसिबल नहीं है फॉरेन, अगर किसी फॉरेन को, या यही अगर कहीं पुणे वगैरह के स्कूल में आपको भेजना है, या मुंबई में भी मल्टीपल फर्म्स को या मल्टीपल स्कूलों में आपको पोर्टफोलियो भेजना है, तो ये इतना आसान नहीं रहता है जितना कि ई पोर्टफोलियो को हम सर्कुलेट कर सकते हैं, एक्सेसिबल बना सकते हैं। एबल टू स्टोर मल्टीपल मीडिया। अगर हम हार्ड कॉपी में अगर पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो वहां एक तो टेक्स्ट या पिक्चर या ग्राफिक्स, इन्हीं फॉर्म में हम वो पोर्टफोलियो बना सकते हैं। पर अगर ई पोर्टफोलियो की ऑप्शन चयन करते हैं तो हम वीडियो उसमें ऐड कर सकते हैं, हम लाइव कन्वर्सेशन उसमें ऐड हो सकता है, मतलब कोई कमेंट जैसी फीचर यूज करके हम लाइव, आपका अगर देख रहा है कोई पोर्टफोलियो तो वो डायरेक्टली आपको कमेंट में जाकर आपके साथ कांटेक्ट कर सकता है, आपके साथ बात कर सकता है, आपके साथ पूछ सकता है कि क्या है ये, क्या लिखा है, अपनी इस तरह से। और भी जो इंटरैक्टिव मीडियाज है उनका उपयोग हम इस माध्यम से कर सकते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग हम हमारे ई पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। तो इस वजह से ई पोर्टफोलियो की जरूरत है, क्योंकि आज वर्ल्ड वाइड सभी को, मतलब हम जैसे कहते हैं कि आज दुनिया छोटी हो गई है, एक गांव जैसे हम वर्ल्ड को देख रहे हैं, तो उस स्थिति में हम जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो रिसोर्सेस अवेलेबल है, उसका उपयोग करके अपने आप को मार्केट के हर हिस्से तक पहुंचाने के लिए ई पोर्टफोलियो का उपयोग होता है। और उस संदर्भ में ये जरूरी है। ई पोर्टफोलियो कंपोनेंट्स, तो इसके कंपोनेंट्स क्या है, तो इसमें क्या चीजें होनी चाहिए। तो ई पोर्टफोलियो में कंटेंट, मतलब इसमें कुछ चीजें हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं कि यही होंगी, इसमें कुछ और ऐड भी हो सकती है, पर मोस्ट प्रोबेबली अ रिज्यूमे। तो जो आपका रिज्यूम है, आप जनरली क्या करते हैं, अभी जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो वो अपना रिज्यूम बनाते हैं और वो स्कूलों में भेज देते हैं, या 1-1.5 पन्ने का रिज्यूम होगा ज्यादा से ज्यादा। तो उससे तो आइडिया आ जाती है उसके बारे में, लेकिन उसके उस रिज्यूम के बेस पर अगर मुझे वेरीफाई करना है, मुझे एविडेंसेस चेक करने हैं, मुझे अश्योर होना है, अगर रिज्यूम दे दिया तो उसको मुझे बुलाना पड़ता है, एम्प्लॉयर को बुलाना पड़ता है, आइए आपका रिज्यूम मिला है, आप आइए, हमारे यहाँ वैकेंसी है, हम बात करते हैं, मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ, इस तरह के प्रोसेसेस। अगर हम रिज्यूम के साथ पोर्टफोलियो है या पोर्टफोलियो के साथ ही रिज्यूम है, तो उसको आपको ज्यादा बुलाकर पूछने की, एविडेंसेस मांगने की जरूरत नहीं है, तुरंत उसको आपका 99% आइडिया आ जाएगी कि ये सुटेबल कैंडिडेट है क्या मेरे लिए। अगर ये सुटेबल है तो उसको डायरेक्ट में बुलाकर मतलब अपॉइंट कर सकता हूँ। तो एम्प्लॉयर्स के लिए बहुत आसान हो जाता है, और जो एम्प्लॉय, हम जो कैंडिडेट है उसको भी अश्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाती है। इस दृष्टिकोण से रिज्यूम में जो है ये आपके पोर्टफोलियो का एक पार्ट होना चाहिए। वर्क सैंपल, रिज्यूमे के साथ आपके पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए, वर्क सैंपल्स, आर्टिक्राफ्ट जिसको हम बोलते हैं। तो वर्क सैंपल किस तरह के होते हैं, तो आपने, अगर हम स्कूल टीचर्स की बात करें या टीचिंग प्रोफेशन की, बीएड की अगर हम बात करें, तो हमारे कोर्स का मेजर जो एम है वो है अच्छे टीचर बनना, पेडागोजिकल स्किल्स और पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज को डेवलप करना, ये इस कोर्स का मकसद है। तो आपको जो पेडागोजिकल स्किल रिलेटेड सैंपल्स है, वर्क जो आपने काम किया है, जैसे कंस्ट्रक्टिविस्टिक लेसन के इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है, लेसन प्लान्स है, या फिर आपने स्कूलों में प्रैक्टिस लेसन लिए तो उसके सैंपल है, या फिर आपने टीचर में टेस्ट बनाई है, अचीवमेंट टेस्ट जैसी बात है, तो वो उसका सैंपल हो सकता है। आपने ब्लूप्रिंट बनाया फॉर द फाइनल असेसमेंट और टर्मिनल असेसमेंट, तो वो ब्लूप्रिंट आपका यहाँ एविडेंस बन जाएगा। या फिर आपने जो स्कोरिंग, मतलब आफ्टर एग्जामिनेशन जो मार्क्स एनालिसिस किए हैं, जिसको हम कहते हैं ना परसेंटाइल रैंक परसेंटाइल वगैरह, तो ये जो एनालिसिस है, तो ये सारे ये दिखाते हैं कि एज अ टीचर जो काम स्कूलों में करने होते हैं इफेक्टिवली, वो सारे काम की प्रैक्टिस आपने की है, वो सारे काम आपने किए हैं, इससे ये प्रूव होता है।
फॉर दैट पर्पज वर्क सैंपल्स मीन्स वो जो चीजें है वो आपके पोर्टफोलियो में आनी चाहिए विद द रिफ्लेक्शन। केवल उतना काफी नहीं है, हर एक सैंपल के साथ उस रिफ्लेक्शन भी आपका होना चाहिए। ये क्यों बनाया, इससे आपने क्या सीखा, इसमें आगे इंप्रूवमेंट के क्या चांसेस है, आपने किस तरह के इश्यूज फेस किए। तो स्मॉल मतलब ये एक छोटा सा रिफ्लेक्शन एज अ पैराग्राफ उस सैंपल आर्टिक्राफ्ट के साथ अगर हम देते हैं तो वो बेहतर पोर्टफोलियो के लिए हो सकता है। उसके बाद में है प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। तो प्रोजेक्ट तो सो मेनी प्रोजेक्ट्स है हमारे, जैसे हर एक कोर्स में अलग हो सकता है, हरियाणा में पता नहीं। तो हमारे कोर्स में हर एक कोर्स में एक प्रोजेक्ट है, तो हर एक कोर्स में एक असाइनमेंट और एक प्रोजेक्ट, इस तरह से काम। तो सो मेनी प्रोजेक्ट जो है बीएड स्टूडेंट्स को है वो कंप्लीट भी करते हैं। तो उसमें से जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स है आपके, जो बेस्ट वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क है, तो उनको भी आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, उनको भी आप पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। वर्क फिलॉसफी, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो आपको आपके पोर्टफोलियो में दिखानी ही दिखानी है कि आप इस प्रोफेशन के बारे में क्या धारणा रखते हैं, आपकी क्या फिलॉसफी है, आप इस प्रोफेशन की तरफ कैसे देखते हैं, आप छात्र शिक्षक संबंध के बारे में आपकी समझ क्या है, आप क्या मानते हैं उस बारे में, आप टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपका मानना क्या है। वर्क फिलॉसफी की बात करें तो आज की अगर हमारी एक्सपेक्टेड फिलॉसफी की अगर बात हम करें तो कंस्ट्रक्टिविस्टिक फिलॉसफी जो है टीचर को चाहिए। तो वो आई लाइक कैसे हो सकता है, आई स्ट्रांगली बिलीव इन स्टूडेंट्स और लर्नर्स पार्टिसिपेशन इन लर्निंग। मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि छात्रों का अध्ययन में पार्टिसिपेशन जरूरी है और वो उससे छात्र बेहतर सीखते हैं। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आपके आते हैं, इट शोज योर फिलॉसफी रिगार्डिंग योर वर्क, आप क्या मानते हैं। तो आप सब्जेक्ट के आप जिस विषय के शिक्षक बनने वाले उससे रिलेटेड हो सकता है, इन जनरल प्रोफेशन से रिलेटेड वो फिलॉसफी आपकी हो सकती है, ह्यूमन रिलेशनशिप के संबंध में आपकी फिलॉसफी हो सकती है। तो आपको रिलेवेंट फिलॉसफी जो कि रिलेवेंट ऐसा नहीं, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग कि ये आपकी फिलॉसफी है तो ये आपके संदर्भ में होगी, बट आज के कंटेम्पररी इरा में किस तरह की फिलॉसफी अप्रिशिएबल है, एक्सेप्टेबल है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको आपकी वर्क फिलॉसफी लिखनी है। वैसे तो बीएड का काम ही यही है कि ड्यूरिंग द 2-year प्रोसेस बीएड हैव टू गिव अ स्पेस टू डेवलप योर ओन वर्क फिलॉसफी एज अ टीचर। एज अ टीचर आपको आपकी शिक्षा के संबंध में फिलॉसफी विकसित करने के अवसर, मौके, स्पेस बीएड के 2 साल के पाठ्यक्रम में उपलब्ध कराना, ये बीएड का काम है। और ये ही इससे पता चलेगा पोर्टफोलियो में कि आपकी फिलॉसफी क्या है, आप किस चीज में बिलीव करते हैं, आप टीचर डोमिनेटेड फिलॉसफीज में बिलीव करते हैं कि लर्नर पार्टिसिपेटरी फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, आप एक अकेला काम करने में बिलीव करते हैं कि आप कोलैबोरेटिव वर्क करने में बिलीव करते हैं। इस तरह से ये चीजें आपकी वर्क फिलॉसफी से पता चले। आप शिक्षा के प्रोफेशन को कैसा प्रोफेशन मानते हैं, आप उसको मतलब डिग्निफाइड प्रोफेशन मानते हैं या एक कैसे कह सकते हैं हम, एक समर्पित व्यवसाय के रूप में देखते हैं कि केवल पैसे कमाने के साधन के रूप में देखते हैं, आदि चीजें आपकी वर्क फिलॉसफी के माध्यम से पता चलती है। तो आपको डेफिनेटली इसके बारे में सोचना है और सही वर्क फिलॉसफी, बैलेंस वर्क फिलॉसफी आपको अपने आप की बनानी है और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। कोर्स लिस्टिंग दूसरी जो चीज उसमें हो सकती है, आपने क्या क्या कोर्स पढ़े हैं पूरे 2 साल के कोर्स में, या अगर हम कहें कि ये पोर्टफोलियो बी की स्टूडेंट्स बना रहे, बी मैकेनिकल, बी इंजीनियरिंग के, तो 4 साल में उन्होंने किस तरह के कोर्सेस, किस तरह का होल प्रोग्राम में उन्होंने जो
प्रोग्राम है जो उसने कंप्लीट किया है, उसमें कौन कौन से कोर्सेज उसने कंप्लीट किए हैं, उसका लिस्टिंग भी जरूरी है। इससे क्या होगा, तो एम्प्लॉयर को पता चलेगा कि आपने क्या क्या सीखा है। देन अ लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल सेट जो आप में आप देखते हैं, आपके अंदर वो विकसित हुए हैं ऐसा आपको लगता है। और ये जो कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल सेट है, इट इज ऑल्सो अलाइन विथ योर कोर्सेस एंड होल प्रोग्राम। तो उससे रिलेटेड जो कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल सेट आप में आप देखते हैं, उसको भी लिस्ट आउट आपको पोर्टफोलियो में करना है, उसको भी शो आपको करना है। और उसके लिए फिर रिलेवेंट एविडेंसेस जो भी है वो लॉजिकली बहुत मतलब कुछ चीजें बहुत दूर से रिलेवेंट होती है और कुछ चीजें बहुत एप्ट होती है, तो वो प्रूव करने के लिए इस तरह से एप्ट एविडेंसेस आपको चुनना है और उनको रिलेट करके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना है। देन ई पोर्टफोलियो ब्रिंग्स टुगेदर, किन किन चीजों को ये एक साथ लाता है। एकेडमिक अचीवमेंट्स, जो आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स है, जिसमें आपका सारा आपके जो स्कोर है सेमेस्टर फर्स्ट के, सेमेस्टर सेकंड के, आपके को करिकुलर लेवल पर जो अचीवमेंट्स आपके हैं, स्पोर्ट रिलेटेड अचीवमेंट जो आपके हैं, आपके अप्रिशिएशन है। अचीवमेंट मींस केवल और केवल मेडल एंड मार्क्स में मत गिनिए, आपके लेसन के नीचे एक बेहतर बहुत पॉजिटिव आपको फीडबैक मिला है, अप्रिशिएशन मिला है, तो आप उसको भी एक अचीवमेंट के रूप में काउंट कर। यू कैन टेक फोटोग्राफ ऑफ दैट फीडबैक एंड शो इट एज योर अचीवमेंट। अगर आपके स्कूल के प्रिंसिपल ने ऐसा रिमार्क लिखा है आपकी टेस्ट को देखकर, क्वेश्चनियर को देखकर, इट इज an excellent questionnaire for the 7th standard students, then it is your achievement, it is also one of the academic achievement। तो आप उसको भी शोकेस करते हैं, आप उसको भी हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। देन पोर्टफोलियो में दूसरी चीज क्या होगी, स्किल्स डिफाइन एज पर करिकुलम। आपके करिकुलम में जो स्किल डिफाइन किए गए हैं, जैसे बीएड में हमारे माइक्रो टीचिंग के स्किल है, टीचिंग स्किल है, असेसमेंट से रिलेटेड स्किल है, पर्सनालिटी रिलेटेड मेनी स्किल्स है, रीडिंग, रिफ्लेक्शन, मतलब ईपीसी एक्टिविटीज है, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज है, वो सारे स्किल इंप्रूव करने के लिए है। तो करिकुलम के हिसाब से कौन कौन से स्किल डिफाइन किए हुए हैं वो भी आपके पोर्टफोलियो में दिखना चाहिए। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, इसके साथ साथ आप कम्युनिटी में कितना इन्वॉल्व हो, आप ड्यूरिंग द प्रोग्राम, ड्यूरिंग द कोर्स, तो आपने कितने एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किए, वो भी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। इन्वॉल्वमेंट, वर्क एक्सपीरियंस, आपके जो फील्ड रिलेटेड डायरेक्टली कामों में, जैसे आप इंटर्नशिप में गए, आप रैली कंडक्ट करने में मदद किया, आपने स्पोर्ट कंपटीशन स्कूलों में कंडक्ट करने में एज अ इंटर्न आपने सपोर्ट किया, आपने बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए एज अ को ऑब्जर्वर या जैसे हम कहते हैं को सुपरवाइजर के रूप में काम किया। व्हाटएवर वर्क यू डिड इन योर प्रोफेशन एज अ इंटर्न और एज अ विजिटर, तो जो भी काम आपने किया है, उसका जो एक्सपीरियंस आपको मिला है, उसका समावेश भी उसको भी हमें पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना है। एंड देन रिफ्लेक्शन, एवरीवेयर रिफ्लेक्शन इज एसेंशियल, हर जगह आपको रिफ्लेक्शन लिखना है। नाउ अभी कुछ सैंपल ई पोर्टफोलियो में आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि वो कैसा हो सकता है, ये कैसा दिखेगा। ये बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बट थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, अगर आपको टेक्नोलॉजी में वैसे भी मजा आता होगा तो आप निश्चित रूप से ये करोगे ही। अगर नहीं भी आता है तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करने से आपको आ जाएगा। ये कुछ सैंपल्स है जो हमारे ही स्टूडेंट्स के हैं, पीजी के और इसके, और यहाँ एक गूगल साइट से डिफरेंट मैंने जो मुझे जो ऑनलाइन मिला वो एक रखा। तो मैं आपको ये एक सैंपल आपको दिखा, और ये जो अभी विंडो खुला है सैंपल का, वो आपको दिख रहा है? नो सर। ओके, तो आई थिंक जो शेयरिंग है वो मुझे होल स्क्रीन शेयर करना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्टॉप करके तो ये जो जिस पोर्टफोलियो पर मैंने क्लिक किया था, ये है सेलिया
सेराव, ये जो स्टूडेंट है उसका है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर है वो। तो उसने अपना पोर्टफोलियो बनाया। तो पोर्टफोलियो क्या है? तो इट इज वन ऑफ द वेबसाइट, तो एक तरह की वेबसाइट है। इस साइट पर आप अपना पोर्टफोलियो फ्री में बना सकते हो, ई पोर्टफोलियो। अभी हमें देखना है कि जो चीजें इसेंशियल पोर्टफोलियो के हिस्से हम कह रहे थे उन्होंने इसमें कवर किए हैं। तो उन्होंने होम दिया है, मतलब होम पेज है यहाँ पर, जिसमें उन्होंने वेलकम टू सेलिया सिराउस ई पोर्टफोलियो, ऐसा उन्होंने उसको टाइटल भी दिया है, होम पेज। देन उन्होंने कोई इमेज अप्रोप्रिएट जो उनके पोर्टफोलियो के लिए सपोर्टिव लगती है, उनके प्रोफेशन के अनुसार, वो उनका अपनी चयन है। वो मतलब उन्होंने इमेज ये क्यों चुना, वो इसका कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने उसके लिए एक इमेज अपने होम पेज पर जो उनके पर्सनैलिटी को, उनके प्रोफेशनल सोच को दिखा सके, ऐसा रखा है। और उन्होंने जो इमेज चुना है वो ग्लोबल इस तरह का अपने आप को ओपन रखा हुआ है, ये उससे पता चला। उस पेज पर ही उन्होंने अबाउट मी, स्वयं के बारे में, अपने आप के बारे में लिखा है। तो जब भी अपने स्वयं के आपको भी पोर्टफोलियो बनाने के पहले अगर कुछ प्रोसेसेस करनी है, तो ये चीजें आपको वर्ड में पहले ही तैयार करनी है। आपके पोर्टफोलियो के लिए एक फोल्डर बनाइए, उसमें चीजें इकट्ठा करिए, आपकी एक वर्ड फाइल भी रखिए जिसमें आपको टेक्स्ट, कैप्शंस, रिफ्लेक्शंस, ये चीजें लिखने के लिए वो मदद करेगी। डायरेक्ट आप वेबसाइट में, मतलब क्रिएशन डिजाइनिंग के पेज पर जाकर करने की बजाय अगर आप आपके वर्ड में तैयार रखोगे, देन यू कैन कॉपी एंड पुट हियर। तो आप ई पेजेस पर आप बाद में उसको पेस्ट कर सकते हो। तो एक फोल्डर बनाना, रिलेवेंट एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्स, इमेज, ये सारी चीजें उस फोल्डर में इकट्ठा करना, और फिर साथ में टेक्स्ट जो आप एसोसिएटेड टेक्स्ट रखा वो भी वहां देना। तो होम पर ये चीज है, होम पर ये अबाउट मी है, जैसे इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है। तो पोर्टफोलियो में उन्होंने अपने आप के बारे में लिखा है, तो वो अपने बारे में लिखती है कि उनके नाम का मीनिंग उन्होंने लिखा है। आपको ये मैं जो है प्रेजेंटेशन शेयर करने वाला हूँ, तो आप बाद में जाकर ये सारे पोर्टफोलियो बहुत शांति से एक्सप्लोर कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उन्होंने अपने आप के बारे में कैसे लिखा है, क्या लिखा है, कौन कौन सी चीजें उन्होंने उसमें बताई। देन आता है थीम। तो ये पेज उन्होंने बनाया है, आप चाहे तो इसमें से कुछ चीजें स्किप भी कर सकते हैं, बट जैसे मैंने कुछ चीजें इसेंशियल कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ पोर्टफोलियो कहा, वो होनी चाहिए उसमें। फिलॉसफी जैसे मैंने अभी कहा कि उसकी फिलॉसफी क्या है यार, तो ये जो स्टूडेंट है उसने अपनी फिलॉसफी 2 पैराग्राफ्स में लिखी है, एक कोट भी उसने उसके साथ एसोसिएट किया हुआ है। माय फिलॉसफी ऑफ लाइफ, उसने पहले तो लाइफ के रिगार्डिंग फिलॉसफी बताई है, और उसके बाद में लाइफ इज अ लाइक ड्राइविंग, इफ यू सेट अ डेस्टिनेशन एंड कीप द रोड सूनर और लेटर यू रीच इट। तो ये जो है उनकी ओवरऑल फिलॉसफी जो है एज अ पर्सन, एज अ, तो आप भी यहाँ, तो मतलब आपको अपनी चॉइस है, आपको अपनी फिलॉसफी लिखनी है, बट दिस इज जस्ट अ सैंपल। You can write your philosophy in include 2 things in your philosophy. One is your life related philosophy, जीवन के बारे में आपका क्या मानना है, धारणा है, and then जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हैं उससे रिलेटेड आपकी फिलॉसफी क्या है। तो वो आप स्ट्रांगली उसको रखिए, उसको आप जिसको बिलीव करते हैं उनको बेझिझक आप वो बात रखिए, क्योंकि वो आपकी फिलॉसफी तभी है जब आप उस चीज के साथ 100% एग्री है। तो उसी तरह की लिखिए, यहाँ झूठ लिखने की कोई जरूरत नहीं, मतलब उसको मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं, जैसा आप हो वैसे लिखिए, क्योंकि यहाँ आपने वो लिखा और आपके एविडेंसेस और आपका काम, आपका अपीयरेंस, आपका बाकी वाली चीजें अगर मैच नहीं होंगी, तो उससे क्या होगा, रिलायबिलिटी जो आपके पोर्टफोलियो की है वो कम हो जाएगी, उससे फिर उसका भरोसा नहीं लगे। आप जो कहीं यहाँ फिलॉसफी में कुछ और बता रहे, मतलब जैसे अगर आपने यहाँ लिखा कि आई स्ट्रांगली बिलीव इन पार्टिसिपेटरी लर्निंग, और आपके जो एविडेंसेस है वहां कहीं भी स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन नहीं दिख रहा है, एवरीवेयर आप सिंगल हो, आप ही कुछ कर रहे हो, आप ही कुछ दिखा रहे हो, वो चाहे आपके इंस्ट्रक्शनल डिजाइन हो, चाहे आपके इमेजेस हो, चाहे आपके पिक्चर्स हो, चाहे आपके वीडियोस हो, तो वो क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा आपकी फिलॉसफी और आपका काम। जैसे हम कहते हैं ना, मतलब उसके विचार और कृति में अंतर, तो उस तरह से वो नहीं दिखना चाहिए।
देन माय वर्क। तो आपने जो भी काम किया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने अचीवमेंट टेस्ट जो कुछ उसने डेवलप किया उसका जो हम कह सकते हैं माइलस्टोन वर्क्स है, तो उसने यहाँ उसके बारे में लिखा है और यहाँ फाइल अटैचमेंट दिया हुआ है, मतलब वर्ड पीडीएफ की फाइल अटैच है जिसमें अचीवमेंट टेस्ट उनकी, अगर आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगी और दिखेगी। तो आप भी आपके जो बेस्ट वर्क्स है, तो आप यहाँ अचीवमेंट टेस्ट की बजाय इंस्ट्रक्शनल डिजाइन्स, माय बेस्ट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन्स, माय बेस्ट ऑफ 5 इंस्ट्रक्शनल डिजाइन्स, उसके बारे में लिखिए, उसकी पीडीएफ बाजू में दे दीजिए। देन सेशन प्लान, आपने अगर ईयर प्लान बनाया है, बीएड में हम जनरली ईयर प्लान, यूनिट प्लान और फिर लेसन प्लान इस तरह से करते हैं, तो वो है, तो वो आपको लगता है कि वो आपका बेस्ट वर्क है, तो आप उसके बारे में लिखिए, उसकी फाइल दे दीजिए। इस तरह से आप हर जगह पीडीएफ ही देना है ऐसे नहीं, आप कहीं आप वर्ड मतलब पीडीएफ, पिक्चर्स, इमेजेस मतलब फोटो क्लिक किया हुआ भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने दिया है। तो इस तरह से अलग अलग जो आपके एविडेंसेस है उन्होंने यहाँ पर दिया है अंडर द पेज ऑफ माय वर्क। तो इस तरह से आप आपके सारे वर्क को शोकेस कर सकते हैं। देन योर रिज्यूमे, तो रिज्यूमे तो डाउनलोड करके वो देख सकेंगे, मतलब जिसको चाहिए वो डाउनलोड कर सकते। हो गया, मतलब अगर आप देखोगे तो इतना कुछ है नहीं, लेकिन जो उन्होंने वर्क की जो पीडीएफ फाइल्स बनाई है उसमें उन्होंने बहुत सारा काम जो है, बहुत सारी फाइल जो है वो बंच किया है या फिर उसको मर्ज करके उन्होंने अटैच किया हुआ। तो जो टेक्सचुअल काम था वो यहाँ शो करेगा, और जो एविडेंसेस है वो इन अ फॉर्म ऑफ पीडीएफ, इन अ फॉर्म ऑफ एल्बम, लाइक फोटो एल्बम, तो अलग अलग फॉर्मेट में आप उसको शोकेस कर सकते हैं। और एक मैं आपको दिखाता हूं, मतलब दूसरा एक सैंपल हम देखते हैं। जस्ट अ मिनट, आप देख पा रहे हो ये भी जो अभी खुला है वो क्या वो पहले वाला विंडो ही है आपके साथ? नहीं सर, ये दिखाई दे रहा है नया। ओके, जी सेल्स ई पोर्टफोलियो। जी सर। तो इन्होंने कुछ डिफरेंट चीजें ली है अपने रिज्यूमे के बाद। उन्होंने इंटर्नशिप ऐड किया है, और इंटर्नशिप में इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स एक सब टैब भी उन्होंने दिया है। रिज्यूमे, इंटर्नशिप, माय वर्क, आइडियोलॉजी। इन्होंने फिलोसॉफी की जगह क्या लिखा है? आइडियोलॉजी लिखा है। थीम, उसमें गैलरी दिया हुआ है। उन्होंने देखते हैं उन्होंने उसमें क्या दिया। तो गैलरी में उन्होंने कुछ पिक्चर्स बस रखे हुए हैं, मुझे मतलब उन्होंने उसको कैप्शन वगैरह तो कुछ नहीं दिया है, बट ऊपर उन्होंने उसके बारे में थोड़ा सा लिखा है। These are some images which I clicked while I was traveling. तो ये चीजें भी ऐसे दिखने को बहुत माइनर दिख रही है, बट अगर आपके एम्प्लॉयर को आपके स्किल में इंटरेस्ट है, आपका एस्थेटिकनेस वो दिखाता है, आपका इससे पता है क्या क्या चलेगा, आपने यहाँ ट्रैवल किया है ये पता चलेगा, आप एस्थेटिक है ये पता चलेगा, आपका क्लिकिंग का मतलब फोटो क्लिक करने का, ऑब्जर्वेशन का, आदि चीजों की क्षमताओं का पता चलता है। ये केवल पिक्चर नहीं है, तो ये आपकी क्वालिटीज को दर्शाने वाली चीजें हैं। तो इस तरह से आप थीम्स में गैलरी दे सकते हैं। अबाउट मी, आईडी स्किल्स, मतलब अलग, अगर आप अलग अलग अबाउट मी आप लिख सकते हो, प्रोफेशनल स्किल, कॉम्पिटेंसीज, टीचिंग स्किल्स, असेसमेंट रिलेटेड स्किल्स, तो आप उसको शोकेस कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत ज्यादा भी करने का कोई मतलब नहीं है, जो स्किल आप में है, क्योंकि पोर्टफोलियो आपका बन रहा है, सिलेबस का नहीं, मतलब करिकुलम का नहीं। करिकुलम में तो बहुत सारा होगा, लेकिन आप में वो कौन सी चीजें हैं जो कि मेजॉरिटी दिखती है, मेजॉरिटी आप में है, आप वो फील करते हैं, उन्हीं को आपको शोकेस करना है। और होम, तो आप अट्रैक्टिव होम रख सकते हैं, अपने रिलेटेड रिलेवेंट इमेज, उसके लिए कैप्शन, या उससे इन्होंने बहुत कुछ तो नहीं दिया है। डायरेक्टली गेट इन टच ऐड किया हुआ है, ताकि आपके साथ कोई संपर्क करना चाहे, मेल करके आपसे कुछ पूछना चाहे तो उन्होंने किया। ये टूल फ्री है, मतलब आप सोचते होंगे तो ये हम कैसे करेंगे, ये पैसे लगेंगे, ऐसा नहीं।
ये फ्री टूल है, बहुत आसान है एडिट करने में, आप आराम से इसमें काम कर सकते हैं, जैसे अन्य ऐप बेस्ड टूल है उसी तरह से। और आज हम जो टूल की बात करने वाले हैं वो गूगल का टूल है। तो गूगल थोड़ा हमें ज्यादा फैमिलियर लगता है ना, गूगल बेस्ड टूल्स को मतलब हमें आसान लगता है काम करना। गूगल साइट में जाकर हम फ्री साइट अपनी बनाकर वहां पर पोर्टफोलियो बना, ये गूगल साइट पर बनाया हुआ पोर्टफोलियो। ओके, डॉक्टर हीलन का ये ई पोर्टफोलियो है। उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या ऐड किया है देखिए, वेलकम, अबाउट मी, कॉम्पिटेंसीज, उसके अंदर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक प्रोफाइल, पोर्टफोलियोज, डिजिटल स्टोरी टेलिंग, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, टेक्नोलॉजी, पब्लिकेशंस आदि चीजें उन्होंने इसमें ऐड की है। रिफ्लेक्शंस अलग से दिए हैं, देखते हैं उन्होंने क्या रिफ्लेक्शंस लिखे हैं। उसमें उन्होंने अलग से लिंक दिया हुआ है जिस पर जाकर आप उसमें डिटेल देख सकते हैं। माय गोल्स, विजन एंड गोल्स भी अबाउट मी जब लिखेंगे आप तो उसमें आपको लिखना चाहिए, तो उससे आपका एग्जैक्टली आप कहाँ पहुंचना चाहते हो, आप चाहते क्या हो जीवन में, उसका पता चले। उसके बाद में वीडियोस है, मतलब आपने कुछ वीडियो बनाए हैं, चाहे वो एज अ प्रैक्टिकल का पार्ट के रूप में बनाए हो, सबमिशन के लिए बनाए हो, या फिर और किसी चीज के स्कूल में लेसन के लिए बनाए हो, तो वो वीडियोस भी आप उस पर अपलोड कर सकते हैं। माय ब्लॉग्स, अगर आपको ब्लॉग राइटिंग की आदत है साइमल्टेनियसली तो आप वो भी शोकेस उसमें कर सकते हैं। साइट मैप, उस साइट मैप तो पूरे उनके साइट का मैप। तो इस तरह से ये चीजें हमारी ई पोर्टफोलियो में कवर होती है, जो हम हार्ड कॉपी में सबमिट करते हैं, उसी को स्कैन करके पीडीएफ मर्जर में अलग अलग सेक्शन जहां जैसा जरूरी है वहां वो दे सकते हैं। इवन अगर फाइल देने के लिए स्पेस कम है फ्री वर्जन में, तो हम अपने गूगल ड्राइव पर सारी फाइल स्टोर करके अपनी जो वेब पेजेस है उसके ऊपर उसकी लिंक्स दे सकते हैं। वीडियोस के लिए, वीडियो को हम यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं अगर वो पब्लिक करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है तो, और उसकी लिंक यहाँ एम्बेड कर सकते हैं पेज पर, तक जिसके कारण ज्यादा स्पेस या ज्यादा जो हम कहते हैं कि वेबसाइट के लिए जो स्पेस है, फ्री वेबसाइट्स में खास करके बहुत कम स्पेस हमें मिलता है, तो उसकी भी दिक्कत हमें सॉल्व हो जाती। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मुझे लगता है हम गूगल साइट को देखेंगे। फिलहाल तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, ये कुछ सैंपल हमने देखे। हाँ, फिर से प्रेजेंटेशन में आते हैं। तो ये कुछ है जो मैं आपको बाद में ये प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, आप उस पर क्लिक करके डिटेल देख सकते हैं, और आप खुद से भी गूगल पर जाएंगे तो n नंबर ऑफ ई पोर्टफोलियोज आर देयर, और बहुत सारे टूल भी है वहाँ, अलग अलग वेबसाइट्स है जहाँ पर आप बना सकते हैं। टूल्स यूज इन ई पोर्टफोलियो, ई पोर्टफोलियो के लिए यूज होने वाले टूल कौन से? मोस्ट कॉमनली अगर हम बात करें तो द यूज ऑफ वेब 2.0 टूल्स टू डेवलप ई पोर्टफोलियो, मतलब क्या है, ब्लॉग के माध्यम से हम ई पोर्टफोलियो के लिए ब्लॉग की मदद ले सकते हैं। इवन जहाँ मतलब आपके अगर खुद के ब्लॉग राइटिंग आप रखते हो तो आप वहाँ आपका ई जर्नल, मतलब आपका जो जर्नल राइटिंग है, जो आपकी जो लर्निंग जर्नी दिखाता है, वो आप ब्लॉग में रख सकते हो। उसकी मदद से या किसी एक दो और टूल की मदद से भी आप ब्लॉग ही एज अ योर ई पोर्टफोलियो आप शेयर कर सकते हैं। विकी का आप वहां पर उपयोग कर सकते हैं। विकी में अलग अलग पेजेस आप अपने अकाउंट बनाकर आप अलग अलग पेजेस बना के उसमें वो कर सकते हैं। दूसरा है गूगल साइट। गूगल साइट तो बहुत ही कॉमनली जब हम अपना गूगल अकाउंट ओपन करते हैं तो जो अलग अलग ऐप आपको मिलती है, जिसमें गूगल डॉक है, जीमेल है, या फिर हमारे अलग अलग मतलब फॉर्म है, डॉक है, वर्कशीट है, तो ये सारे जो गूगल मीट है, तो उनके साथ साथ आपको गूगल साइट का ऐप भी वहां मिलता है। अगर नहीं है तो मोर पर क्लिक करेंगे तो गूगल साइट का ऐप वहां आपसे आप लेकर अपने इसमें ऐड कर सकते हैं, और उस ऐप का उपयोग करके आप अपनी गूगल साइट जो आपके ई पोर्टफोलियो के लिए हो सकती है उसके यूज कर सकते हैं। और दूसरी जो मैंने कुछ पोर्टफोलियो दिखा है wix.com से, ये भी फ्री अवेलेबल है, फ्री में भी है उनका और पेड वर्जन भी है।
बट फ्री में ही इनफ है, क्योंकि फ्री और पेड का डिफरेंस इतना ही है, जो लिंक क्रिएट होती है आपके उसमें जो जहां पर आपने बनाए हैं उसका पार्ट कुछ आ जाता है, जो लिंक आप शेयर करने वाले होते हैं उसमें, जैसे डॉक्टर महेश portfolio/wix.com ये आगे आ जाएगा। गूगल साइट में भी सेम उसी तरह से वो हाईलाइट होगा। तो ये क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज करें और हमें उससे कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि अभी आप कोई प्रोफेशनल इस तरह की पोर्टफोलियो नहीं बना रहे। जो लोग प्रोफेशनल वेबसाइट्स अपने रखते हैं, ब्लॉग वेबसाइट्स या फिर खुद के पोर्टफोलियो की वेबसाइट्स, वो डोमेन जो है वेब डोमेन वो परचेस करते हैं, उसके लिए वो हर साल जो भी सब्सक्रिप्शन है वो पेड करते हैं और उसको यूज करते हैं, जो उसका उसमें केवल यूनिक उनका जो डोमेन नेम है वो मिल जाता है। तो खाली उतना डिफरेंस है। बट एज अ स्टूडेंट अभी आप लोग जो गूगल साइट का उपयोग कर सकते हैं। तो गूगल साइट कहाँ मिलेगी, तो हाँ थोड़ा सा पहले मैं ये बताता हूँ, मतलब ये सारी गूगल की चीजें कैसे लिंक है गूगल एप्स ई पोर्टफोलियो मैसअप के लिए। तो अगर हम गूगल ऐप की बात करें तो एक एक टूल की अगर बात करें तो पिक्सा जो है गूगल का, उसमें स्टूडेंट स्टोर देयर इमेजेस इन ऑनलाइन एल्बम एंड कैन इनकॉर्पोरेट देयर इमेजेस इनटू देयर पोर्टफोलियो। सेम उसके बाद में जीमेल, स्टूडेंट एंड टीचर हैव ईमेल अकाउंट विद द जीमेल। स्टूडेंट उसके बाद में गूगल ग्रुप्स के माध्यम से दे कैन डिस्कस, दे कैन कोलैबोरेट। Student and teacher have space to discuss their work through the Google group. Google Drive student have linked to all of their Google files, videos plus other tools. Then Google Note की उपयोग से student use a note taking app or a camera to document their learning activities. Then Google का ब्लॉगर का यूज करके, जिसकी मैंने अभी बात की, गूगल ब्लॉगर के माध्यम से आप अपना पूरा ई पोर्टफोलियो भी ब्लॉग के फॉर्म में बना सकते हो। तो ब्लॉगर में जाकर स्टूडेंट मेंटेन अ जर्नल इन अ फॉर्म ऑफ ब्लॉग और देयर लर्निंग एक्टिविटीज एंड रिफ्लेक्शंस विद फीडबैक थ्रू कमेंटिंग फंक्शन। ऑल्सो इसके साथ साथ स्टूडेंट गूगल डॉक के माध्यम से स्टूडेंट क्रिएट वर्ड presenting spreadsheet or a presentation artifacts in Google Docs. साथ साथ RSS के माध्यम से टीचर कैन फॉलो स्टूडेंट्स वर्क बाय, मतलब सब्सक्रिप्शन, अगर टीचर उसको सब्सक्राइब करते हैं तो ब्लॉग्स हो या डॉक हो, जो भी टीचर ने सब्सक्राइब किया है उसको जो भी अपडेट उसमें आएंगे, जो भी आपने काम किया है, जो भी नया आपने उसमें डाला, उसका नोटिफिकेशन आपको आपके टीचर को जाएगा। उसके बाद में हैप्रा उसमें तो और यूज टीचर डैशबोर्ड टू मैनेज टीचर स्टूडेंट इंटरैक्शंस इन गूगल ऐप। गूगल डॉक, फिर टीचर एंड अदर स्टूडेंट प्रोवाइड फीडबैक थ्रू द शेयर फंक्शन। गूगल साइट, दिस इज द लास्ट थिंग, गूगल साइट। हियर यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट फॉर योर ई पोर्टफोलियो along with this all tool। ये सारे टूल्स का उपयोग इस वेबसाइट बनाते समय आप उपयोग कर सकते हो और अपना जो पोर्टफोलियो है उसको शोकेस कर सकते हैं। तो केवल गूगल के टूल्स यूज करके भी हम ई पोर्टफोलियो बना सकते हैं। नाउ टाइम इज डेमोन्स्ट्रेशन, लेट्स डेवलप योर पोर्टफोलियो विद गूगल साइट्स। तो उसके लिए जो साइट है, अगर आप ऐप के थ्रू नहीं जा सकते हैं, आपको नहीं मिल रहा है फिलहाल आपके, मुझे नहीं मालूम कि आप सभी के पास अभी लैपटॉप है कि मोबाइल है, मोबाइल से आप लॉग इन कर रहे हैं कि लैपटॉप से। मोबाइल में निश्चित रूप से दिक्कत है, क्योंकि साइट डेवलपमेंट के लिए थोड़ा अलग तरह की चीजें जरूरी है जो कि कंफर्टेबल रहेगा डेस्कटॉप में करना, क्योंकि एडिटिंग वगैरह का काम। तो उसके लिए जो साइट है http://site.google.com, इसमें आप न्यू पर जाएंगे तो न्यू साइट आप ओपन कर सकते हैं, या wix.com पर जाकर भी आप ये कर सकते हैं। और बहुत आसान, जैसे कैनवा में वगैरह हम एडिटिंग का काम करते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ भी हम अपना वेब पेज, वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। तो ये था प्रेजेंटेशन, थैंक यू। आपके कुछ क्वेश्चंस है तो वो लेकर फिर हम वो डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ देखते, थोड़ा सा देखते कि कैसे गूगल साइट में हम अपनी ई पोर्टफोलियो बना सकते हैं।
आपके इसके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चंस है कि पोर्टफोलियो क्या है, कैसे है, कोई भी सवाल हो बेझिझक आप पूछ सकते। कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में है किसी भी तरीके का, सर ने बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन थी जिसमें बहुत सारी चीजें कवर हो गई, हमने इवन सैंपल पोर्टफोलियोज भी देख लिए, तो उससे पिक्चर क्लियर हो गई कि पोर्टफोलियो क्या है और किस तरीके से हम अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं। तो इससे पहले कि सर हमें प्रोसेस बताएं पूरा पोर्टफोलियो डिजाइन करने का, अगर आपके मन में अभी तक की प्रेजेंटेशन को लेकर कोई सवाल है तो प्लीज आप सर से पूछ सकते हैं। मैं पूछना चाहूंगी सर चीजें क्लियर हैं? हाँ जी, पूछना चाह रहा है कोई? हाँ जी मैम जी प्लीज। मैं ये पूछ रही थी, जैसे सर ने बताया कि वेबसाइट भी है ये एक तरीके की पोर्टफोलियो, तो ये पर्सनल तो बना ही सकते हैं, इसके अलावा इंस्टीट्यूट के लिए भी बना सकते हैं ना? हाँ हाँ बना सकते हैं आप, चाहे इंस्टीट्यूट की तो वेबसाइट ही होगी ना, और नहीं, that is the उसमें page। और इसमें फिर कितना डिफरेंस है? नहीं डिफरेंस कुछ भी नहीं, उसमें चीजें बहुत ज्यादा आएंगी। इंस्टीट्यूट के लिए बहुत सारे टैब चाहिए, बहुत सारे पेजेस चाहिए, वहाँ थोड़ी प्रोफेशनल कैपेसिटी चाहिए, एडिटिंग है, ये चीजें है, वो इंस्टीट्यूट के लिए अलग रहेगा। आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, उतना ज्यादा चीजें जरूरी नहीं है ये पोर्टफोलियो में। आई थिंक नंबर ऑफ पेजेस का ही डिफरेंस है, बाकी बेसिक तो यही है। नंबर ऑफ पेजेस का डिफरेंस है, कंटेंट में डिफरेंस है, क्योंकि कंटेंट जो है वो वहाँ का कंटेंट ज्यादा इंटरैक्टिव है, ज्यादा डायनामिक हो सकता है। वहाँ का जो कंटेंट है वो मास के लिए अपील करने वाला है, वो एम्प्लॉयर्स को ध्यान में रख के नहीं, कंज्यूमर्स को ध्यान में रखकर बन रहा है। तो आप जब इसको डेवलप कर रहे हो तो आप एम्प्लॉयर्स को ध्यान में रखकर बना, तो दैट इज सर मैं यही चाह रही थी कि इसमें ये डिफरेंस है कि कंटेंट अलग आएगा, वो तो देखो जैसे हाँ टेक्निकल प्रोसेस इज चेंज सेम। होगा टेक्निकली जैसे हम टेक्निकली। वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हैं ना, सेम प्रोसेस यहाँ भी है। यहाँ भी जो एडिटिंग वगैरह जो चीजें है, इनकॉर्पोरेशन, एम्बेडिंग, इमेज यूज करना, लोगो यूज करना, वो सारी चीजें सेम यहाँ भी वर्क करती है। अगर आप वेब डिजाइनिंग के काम में एक्सपर्ट है तो ये काम तो आपके लिए बहुत आसान या बहुत छोटा काम। थैंक यू सर। और अगर आप नए हैं, कोई नया नया बिजनेस आपने शुरू किया है, कोई इंस्टीट्यूट है जिसका वेबसाइट प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं है, दे कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म आल्सो फॉर द प्रमोट देयर वर्क थ्रू द सच वेबसाइट्स। ओनली इसमें ये आता है गूगल आ जाता है उनके डोमेन नेम में, और वो अनप्रोफेशनल दिखता है, इसलिए लोग अपना डोमेन परचेस करते हैं। और स्पेस भी मैटर करता है ना, यहाँ स्पेस बहुत कम है। जो हम प्रोफेशनल स्पेस में हम तो होल्डिंग्स लेते हैं जहां हमें स्पेस मिलता है। थैंक यू सर। और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक सर चीजें बहुत हद तक आपने क्लियर कर दी है, तो हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी हम वही करते हैं जो जी सर। गूगल में जाकर कैसे वेबसाइट बनानी। ठीक है, अभी गूगल साइट के लिए जब आप ये एड्रेस डालोगे site.google.com, तो इस तरह से पेज आ जाएगा। सभी को स्क्रीन विजिबल है? यस सर। आपको कहीं रोकना, मैं बस प्रोसेस बता देता हूँ, करने में टाइम लगेगा। आपके पास लैपटॉप है तो ज्यादा इजी होगा, मोबाइल में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट आपके यूज पर डिपेंड है। आप मोबाइल में फ्लुएंट है तो आप वहां भी काम कर सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस, आपका जिसमें आदत है उसके हिसाब से। तो आप तो जब इस तरह के डैशबोर्ड पर जाएंगे तो लॉगिन तो डेफिनेटली आपके ईमेल आईडी से लॉगिन हुआ रहेगा। यहाँ पर आपको आपका अगर ऐप से करना है तो यहाँ पर आपको साइट ऐप आपको मिल जाएगी। अगर यहाँ मेरे इस अकाउंट में यहाँ नहीं है तो यहाँ मोर में अगर आप जाकर जैसे अपनी ये पहले वाली ऐड की है वैसे ही वो ऐप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये ऐड कैसे करना है, उसके लिए आप YouTube पर कोई वीडियो देख सकते हैं कि उसमें आपको ये कैसे किया जाए। तो यहाँ जाकर आप स्टार्ट अ न्यू साइट का ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर यहाँ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं।
जैसे पोर्टफोलियो का टेम्पलेट ऑलरेडी दिया है, लेकिन हो सकता है ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये आपको इम्प्रेसिव नहीं लग रहा है, सुटेबल नहीं है, तो आप नया क्रिएट करने के लिए ब्लैंक जो है साइट पेज ओपन कर सकते हैं। तो ब्लैंक पर जाएंगे तो जनरली जो ओपन होता है वो इस तरह से। तो अभी यहाँ पर आया आपका जो होम पेज है, मतलब फर्स्ट पेज जो आपका रहेगा, इसको आप क्या कर सकते हैं, साइट नेम, तो आप अपना नाम दीजिए और पोर्टफोलियो उसको, ये साइट ही आपकी पोर्टफोलियो साइट है तो सेम आप उसको कर सकते हैं। टाइटल के लिए भी ओके हो गया, यहाँ पर करके आप वहां क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वहां भी टाइटल, जैसे हम गूगल में भी क्विज वगैरह बनाते वक्त करते हैं, गूगल डॉक या फिर फॉर्म बनाते वक्त, तो यहाँ आप अपना टाइटल दे सकते हैं, जो भी आप अपने लिए सुटेबल टाइटल देख सकते हैं वो। उसके लिए आप कुछ और लोगों के अगर देखेंगे तो उसमें से पता चलेगा। चेंज इमेज, जो बैकग्राउंड है यहाँ पर जो आया हुआ, उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सिलेक्ट इमेज में जा सकते हैं, कुछ नया यूनिक आप अपने पास का इमेज देना चाहते हैं तो अपलोड करके आप उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन चेंज फ्रॉम द गिवन इमेजेस। तो ये रहा, तो आपके होम पेज का जो लुक है, इमेज है, वो यहाँ पर आ जाएगी। आपका जो भी टेक्स्ट रहेगा वो यहाँ आ सकता है, आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं, जैसे वेबसाइट पर जनरली कोट भी लिखते हैं कुछ लोग, तो आप अपने तरीके से आपके होम पेज पर फर्स्ट टाइटल क्या हो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। रीसेट के लिए यहाँ जाकर आप चीजें रीसेट कर सकते हैं। हेडर जो है उसको टाइप कर सकते हैं आप। कवर, लार्ज बैनर, आपको ये चाहिए कैसे, मतलब लार्ज बैनर के रूप में चाहिए, कवर के रूप में चाहिए, बैनर के रूप में चाहिए, या टाइटल ओनली। तो जनरली बैनर या होम पेज है तो आप कवर भी रख सकते हैं, कवर में इस तरह से आएगा। लार्ज बैनर में जाएंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, और बैनर में तो थोड़ा सा एक मीडियम साइज का हो जाएगा, या फिर टाइटल ओनली तो केवल टाइटल, पिक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं। ओके, तो इस तरह से आपके होम पेज पर आप अपने लिए सुटेबल इमेज, लोगो अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो आप अपलोड कर सकते हो और वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, इसी पर आप और एक टेक्स्ट बॉक्स चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से टेक्स्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, या फिर आप उसको यहाँ भी ले जा सकते हैं। इसको थोड़ा यहाँ एक साथ वो टच हो रहा है इसलिए नहीं आ रहा है, बट आप इसको छोटा करके आ भी गया है, यहाँ नीचे क्लिक करके आप लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स, जहां जहां आपको टेक्स्ट ऐड करने हैं वहां टेक्स्ट बॉक्स आप यहाँ से ले सकते हैं। इमेज ऐड करनी है आपको, समझो पेज पर नीचे इमेज ऐड करनी है तो सिलेक्ट, आपके ड्राइव में ले गया, आपके ड्राइव में जो जो इमेजेस है वहां से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरे ड्राइव में चला गया है। नहीं तो आप अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर और वो इमेज वहां आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट के ब्लॉक चाहिए तो मतलब डायरेक्ट करने की बजाय इमेज और कंटेंट इस तरह का चाहिए तो आपको यहाँ वो मिल गया, कंटेंट का ब्लॉक आ गया, यहाँ पर इमेज उससे एसोसिएटेड कंटेंट आप इस पेज पर वो कर सकते हैं। सेम अगर 2 इमेज और उसके नीचे कंटेंट चाहिए, अगर 3 इमेज ही चाहिए इस फॉर्मेट में तो यहाँ अलग अलग फॉर्मेट है कंटेंट ब्लॉक्स के, तो आप उनमें से जो अप्रोप्रिएट ब्लॉक्स आपके लिए लगता है वो चुन सकते हैं। और ये बहुत यूजफुल है, मतलब कंटेंट थोड़ा अट्रैक्टिवली प्रेजेंट करने के लिए अच्छा है। और एक बात ध्यान रखिए कि वेबसाइट में बहुत ज्यादा टेक्स्ट कंटेंट ना हो, इट शुड बी अ कैची, बहुत फटाक से 2-4 लाइन पढ़ते ही पता चले, इस तरह से मतलब प्रिसाइज होनी जरूरी है, मतलब संक्षेप में, शॉर्ट बट स्वीट, इस तरीके से उसको लिखा जाना जरूरी। कोलैप्सेबल ग्रुप्स में आप ये सारे जो ऑप्शन है आप उन सबको एक्सप्लोर करिए, एसोसिएट कर सकते हैं कैलेंडर के साथ, मैप के साथ, कैलेंडर ऐड कर सकते हैं, डॉक ऐड कर सकते हैं, स्लाइड, शीट्स,
ये सारे ऑप्शन आप उसमें यूज कर सकते हैं इंसर्ट के अंदर। पेज, अगर आपको अभी नया पेज बनाना है, ये तो होम पेज हो गया हमारा, तो अभी बनाते हैं रिज्यूम। ओके, होम पेज या अबाउट मी। तो नाउ अबाउट मी पेज इज हियर। तो अभी हम अबाउट मी जो पेज है उसको भी, उसका जो बैकग्राउंड इमेज है, अभी हमारे पास तो एक ही, कुछ भी नहीं था, इसलिए अभी ये पहला अबाउट मी आया। तो दूसरा होम, मतलब पहला होम करना चाहिए था, ठीक है। उसको एडिट करके आप कभी भी कर सकते हो उसको, कोई यहाँ कुछ एडवांस सेटिंग भी है। तो कस्टम पाथ तो ऑटोमेटिक जो पाथ आएगा वो सफिशिएंट है। आपको कुछ अलग मतलब टेक्स्ट में वो चाहिए लिंक पाथ, तो आप कर सकते हैं, या पाथ उसका डिसाइड। तो आप यहाँ देख रहे हैं ऊपर, जैसे जैसे हम पेज ऐड कर रहे हैं, होम, अबाउट मी, होम पेज, मतलब होम तो पहला पेज है जहां पर ये है, अबाउट मी तो ये हो गया, होम पेज हमने डबल क्रिएट किया इसलिए वो फिर से आया। तो इस तरह से आप जितने चाहे उतने पेजेस बना सकते हैं और उसके ऊपर अपना कंटेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। और कंटेंट ऐड करने के लिए सुटेबल है ये जो डैशबोर्ड आता है। टेक्स्ट बॉक्स चाहिए टेक्स्ट बॉक्स, इमेज चाहिए तो इमेज, एम्बेड करना है, आप कोई वीडियो एम्बेड करना चाहते हैं आपका, तो एम्बेड को यूज करिए। मतलब आपको यहाँ पर एम्बेड कोड जो आता है, यूआरएल, यूट्यूब से डायरेक्ट यूआरएल लेके एम्बेड कर सकते हैं, या एम्बेड कोड लेकर आप यहाँ वो पेस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपके ड्राइव में कोई वीडियो है तो उसके लिए एम्बेड कोड लगेगा, यूआरएल से वो नहीं होगा। तो एम्बेड कोड की मदद से आप उसको यहाँ कर सकते हैं। तो ये चीजें आप जैसे एक्सप्लोर करेंगे तो आपको धीरे धीरे सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के बाद आपको पता चलेगा। फॉर्म दे सकते हैं आप कॉन्टेक्ट मी के लिए, मैप दे सकते हैं आप, आपके लोकेशन का डॉक ऐड कर सकते हैं, स्लाइड, शीट, फॉर्म्स, चार्ट्स, ये जो सारे गूगल के फीचर्स है वो सारे आप अपने वेबसाइट पर यूज कर सकते हैं। थीम्स में अगर आप जाएंगे तो अलग अलग वेबसाइट्स की थीम जो है कस्टम भी कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि कई कुछ बहुत सारी फ्री थीम अवेलेबल होती है, वो डाउनलोड करके आप यहाँ अपलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ नहीं तो यहाँ जाकर आप अपनी थीम के कलर वगैरह, ये अलग अलग थीम्स दिए हुए नीचे, उनमें से आपको जो थीम अच्छी लगती है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी रहा ये सब बनाने के बाद आपको उसको शेयर करना है, शेयर विथ ऑथर्स। तो पब्लिश, पहले तो आपको उसको पब्लिश करना है। ठीक है, पब्लिश साइट, ओके ठीक, डन। तो ये साइट जो है वो पब्लिश हो गई। तो अभी मुझे पब्लिश टू द वेब, ये किस तरह से पब्लिश करना है ऐसे वो पूछ रहा है। तो महेश नाम ऑलरेडी है उनके पास, महेश ये है क्या, तो इस तरह से वो शो करेगा, http site google.com view महेश पोर्टफोलियो। तो आपकी जो साइट, आप अपना जैसे साइट नेम चाहते हो वैसे उसको रख सकते हो। कस्टम डोमेन, मेक इट इजियर फॉर पीपल टू विजिट योर साइट विथ कस्टम डोमेन सच एज www वगैरह, ये उन्होंने दिया है, तो आप यहाँ जाकर उसको मैनेज कर सकते हो। ओके, तो इतना काफी है। हु कैन व्यू, आपकी जो साइट है वो कौन व्यू करेगा, एनीवन जिसके पास ये साइट होगी, मतलब लिंक होगी, तो पब्लिश। अभी आप ये जो लिंक मैंने दी है वो अगर आप, मैं आपको शेयर करता हूँ, आप देखिए खुलती है क्या। होम पेज की दिया है मैंने डायरेक्ट, इसलिए वो होम पेज ऐड हो गया लिंक में। तो जैसे आपका इस तरह से पोर्टफोलियो रेडी हो जाता है, सारे एविडेंसेस वगैरह ऐड करके, इमेज वीडियो ऐड करके, तो आप अपनी पोर्टफोलियो की लिंक जो है व्हाट्सएप, ईमेल
आदि माध्यमों के द्वारा आपके एम्प्लॉयर्स तक बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। मुझे लगता है मेरी तरफ से एंड है। बाकी तो खुद चीजें आप एक्सप्लोर करिए। आप अगर आईसीटी का आपके असाइनमेंट में ये है तो उसका भी हिस्सा ही हो सकता है, नहीं तो मैडम आप भी कर सकते हो। आईसीटी की एक्टिविटीज में एक एक्टिविटी भी आप उनको दे सकते हैं कि एक छोटी सी वेबसाइट अपनी बनाई है इस पर जाकर, तो वो सीख भी जाएंगे और फिर उसका उपयोग भी करेंगे। Can I stop sharing? Yes, sir. बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है। मतलब गूगल साइट में तो सब फ्री में अवेलेबल है और बहुत इजीली हम उसमें काम कर सकते हैं। आसान अब से पहले नहीं था सर, लेकिन आपका सेशन अटेंड करने के बाद ये बहुत आसान हो गया है हमारे लिए। अभी इससे पहले जब हम सुनते थे ई पोर्टफोलियो के बारे में तो मुझे खुद को लगता था कि ये पता नहीं क्या चीज है और मैंने कभी नहीं बनाया था। और आपने इतने आसान शब्दों में और इतनी एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी जिसमें स्टेप टू स्टेप आपने बहुत सारी चीजों को क्लियर किया और उसके बाद प्रैक्टिकली जो डेमोन्स्ट्रेट किया स्टेप बाय स्टेप, तो अब लग रहा है ये वाकई कुछ नहीं था। आपका पढ़ाने का तरीका, बताने का तरीका ही इतना अच्छा था। तो थैंक यू सो मच सर। मैं अब हमारे आईसीटी के इंचार्ज को बुलाना चाहूंगी। हमारे साथ ललित सर है, वो यहाँ हमारे यहाँ आईसीटी के इंचार्ज है, कि वो इस सेशन के बारे में कुछ कहें कि उनके क्या विचार हैं। अभी इसका आगे का काम मैं आईसीटी के इंचार्ज के हाथ में सौंप देता हूँ। जी सर, दैट्स गुड सर। जी ललित सर। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं डॉक्टर महेश जी जो आज के हमारे इस सेशन के रिसोर्स पर्सन हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज एक ऐसा टूल बताया जो शायद मैंने भी यूज नहीं किया। सच्चाई है जो कहता है किसी चीज को छुपाना नहीं चाहिए, जो चीज आपको आती है वो बतानी चाहिए, जो चीज नहीं आती वो भी बतानी चाहिए। मुझे ये नहीं आता था जो मैंने इसको आज सीखा। और वेबसाइट्स मैं हालांकि कॉलेज की मेंटेन करता हूँ, एक दो और वेबसाइट्स भी मेंटेन करता हूँ, लेकिन बनानी कभी नहीं सीखी थी, बनानी नहीं आती थी। जस्ट बाहर से बनवाई और उन्होंने मुझे सिखा दी कि आपने इसको ऐसे मेंटेन करना है ताकि उनका काम आसान हो जाए, मेरा काम बढ़ जाए। लेकिन हमने इस चीज को एज ए चैलेंज लिया हमेशा और अपनी कॉलेज की वेबसाइट को हम लगातार मेंटेन करते रहते हैं। लेकिन बनाते कैसे हैं इसका एक आइडिया आज आपने हमें दिया, हमारे सभी स्टूडेंट्स को दिया, हमारे सारे स्टाफ को दिया, जिसका फायदा सभी ने उठाया। तो मुझे विश्वास है और ये कहना चाहूंगा कि आज सभी जाते ही जैसे आपने प्रैक्टिकल करके दिखाया, तो आने वाले 3-4 दिनों में सभी के पोर्टफोलियो आने शुरू हो जाएंगे, मेरा तो ऐसा मानना है। और अभी मेरे साथ मैडम बैठे हैं, मैडम सुनीता, तो उनसे डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने शायद अपना बनाना शुरू भी कर दिया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 4-5 दिनों में जो आपने टास्क दिया, हाँ रही बात इसको आईसीटी के स्टूडेंट्स को एज ए टास्क देने की, तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल हैं, मैं देख रहा था स्ट्रेंथ स्टार्टिंग से 40-45 तक पहुंची थी, लेकिन 33 अभी भी हैं। इट मीन्स वो सभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो आपको बड़े ध्यान से सुन रहे थे, जो कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको हम फोर्सली नहीं कहते कि नहीं आपको बनाना है। देखना 3-4-5 दिनों में ये सभी स्टूडेंट्स जो आज अभी लाइव बैठे हैं, एंड तक बैठे हैं, डेफिनेटली जो आपने टास्क दिया इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसका फ्यूचर में यूज करेंगे। और नेक्स्ट सेशन से जैसे ही, अब तो हमारा सेशन एंड में है, प्रैक्टिकल सारी तैयार हो चुकी हैं, प्रोजेक्ट्स हम सारे दे चुके हैं उनको, लेकिन ये एडिशनल टास्क जो स्टूडेंट सीख रहे हैं तो डेफिनेटली उसको परफॉर्म करेंगे। लेकिन नेक्स्ट ईयर से जैसे ही हमारा नया सेशन स्टार्ट होगा तो इसको हम आईसीटी का एक रेगुलर प्रोजेक्ट बनाकर हम स्टूडेंट्स को देंगे, ताकि वो अपना सभी स्टूडेंट्स अपना ई पोर्टफोलियो तैयार कर पाए और फ्यूचर में इसका यूज कर पाए। मैं एक बार फिर से डॉक्टर महेश जी का धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसा यूजफुल सेशन हमें वो फ्यूचर में भी प्रोवाइड करते रहेंगे जिसका सभी हम बेनिफिट उठा सके। थैंक यू डॉक्टर महेश। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, और अच्छा लगा। बस यूज करिए, अगर कुछ इशू है, कुछ इंक्रीज करना है नहीं सर, अब हम समय समय पर आपको बुलाते रहेंगे। अब हमें लग रहा है कि आप ज्ञान का भंडार है, मुझे पहले भी पता है, लेकिन अभी हम आपसे ज्ञान लेते रहेंगे। थैंक यू। तो इसके बाद हमारे साथ हमारे IQAC के इंचार्ज हैं डॉक्टर नरेंद्र सर।
मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि आप इस सेशन के बारे में 2 शब्द कहें। डॉक्टर नरेंद्र। नमस्कार सर, एजे आईपीएस इंचार्ज सर, आपका बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूँ डॉक्टर महेश सर। इतनी पोर्टफोलियो के बारे में सुना था हमने कि पोर्टफोलियो जैसे बनाना चाहिए, लेकिन इतनी बारीकी से, जैसे अभी ललित सर ने बताया, मैडम ने बताया, इतनी बारीकी से किसी ने नहीं बताया। लेकिन अब पूरा विश्वास है कि हम भी अपना पोर्टफोलियो जब जरूर बनाएंगे। और आपने एक एक स्टेप को बारीकी से बताया, एक एक स्टेप, जैसे अब बाद में लास्ट में जो पूरा प्रोसेस बताया आपने, तो वो बड़ी अच्छी तरीके से बताया। मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद किसी कोई चीज़ ना समझ में आई। बहुत ही अच्छे तरीके से सर आपने डिफाइन किया, और आपका बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. And now I request our principal ma'am for formal vote of thanks. Principal ma'am. Thank you, Batra madam. मेरी मैडम। हाँ जी मैम, मेरे सुन पा रहे हैं? नेटवर्क इशू हो गया था कुछ। जी जी मैम, जी जी। डॉक्टर साहब आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? डॉक्टर महेश। यस मैडम, यस यस। हाँ जी, नेटवर्क इशू हो गया था सर, थोड़ा सा रिदम टूट गया था ना बात करते करते। डॉक्टर साहब, आपने आज हमारे सबसे बढ़िया काम किया कि आपने एक टास्क दे दिया, हमारे आईसीटी इंचार्ज को दे दिया, उनके कंधों पे एक जिम्मेवारी दे दी कि सीखो और सिखाओ। और ये हमारे लिए कितना जरूरी है कि स्टूडेंट और टीचर यूजफुल कलेक्शन है वो पोर्टफोलियो के माध्यम से ही प्रेजेंट हो और अपने पास सिक्योर रहे, बहुत बढ़िया है। क्योंकि जहां तक टेक्निक की बात करें, टीचर एजुकेशन में जो कोरोना काल हम लोगों ने देखा है, और टीचर एजुकेशन पे खासकर ये आया था कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, तो ये टेक्निक के माध्यम से ही समझ आया। टेक्निक से ही आगे पोर्टफोलियो है, जूम मीटिंग है, गूगल है, डिफरेंट ऐप थे जो वो सारे ही हम लोग अवेयर हुए, जानकारी थी लेकिन डीप नॉलेज नहीं थी। आज के लेक्चर से तो कई बार यूं लगा है कि सर हाँ जैसे आप हरियाणा से ही हो। इतनी सिंपल लैंग्वेज जो कि स्टूडेंट के लेवल पे उतर के आ रही है, 1 मिनट के लिए भी पॉज करने का मन नहीं किया। मेरे पास मेरा लैंड फोन पड़ा है, मैंने उसको होल्ड रख दिया कि ये भी ना बजे आज। तो इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ सर, आपकी प्रेजेंटेशन को तहे दिल शुक्राना आपका। और कविता मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें एक ऐसी पर्सनालिटी से इंट्रोड्यूस किया है जो बिल्कुल जमीन पे रह के काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले ही बोला था सर के बारे में कि मेरे पास शब्द नहीं है सर के बारे में कहने को, कि सर हमेशा मेरे लिए एक गाइडिंग लाइट का काम किया सर आपने। और आज आपने हमारे स्टूडेंट्स को भी बहुत एक अच्छे टॉपिक से रूबरू कराया जो इनके फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है, और हम सबके लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नरेंद्र सर, आप कुछ कह रहे हैं? जी मैम, कविता मैम, मैं ये कह रहा था कि सर से आप आगे भी कोई टाइम ले लीजिए, आगे से कोई नए टॉपिक जो है। बिल्कुल बिल्कुल, जी जब भी सर। समय मिलेगा हम साथ में बिल्कुल काम करेंगे। सर हमें तो ये लग रहा है कि हमें एक सीरीज शुरू कर देनी चाहिए, वीकली सीरीज। जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये जरूरी है यार, ये बिल्कुल कोलैबोरेशन, शेयरिंग, ये जी सर, इस तरीके की शेयरिंग, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज होती रहनी चाहिए। तो हम इन फ्यूचर भी आपसे यही आशा करते हैं कि हम जुड़े रहेंगे। तो वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, बाय बाय सर, थैंक यू।